Good morning everyone. Welcome to the lecture of Foundation Engineering. In the last sum of lecture we are studying a pile foundation and we have seen almost all the theoretical part from this chapter. Now in today's lecture we are going to see some of the examples. So let's start with the examples. Compute the number of piles required to transfer a load of 2800 kilonewton of a structure. The length of a pile is a 10 meter and 400 mm diameter. The piles are bored in a deep deposit of a clay having undrained shear strength 90 kilonewton per meter square. Take a factor of safety 2.5. Also suggest the arrangement of a piles. So here C is 90 kilonewton per meter square. Factor of safety is given 2.5. Permissible C, if we wanted to find, then we will do C divided by FOS. So here our C is a 90 and FOS is 2.5. So we will put the value and we will see permissible C 36 kilonewton per meter square. Here length of the pile is given 10 meter. So diameter of the pile diameter of the pile is given 400 mm. That means 0.4 meter. Now we will see this NC and alpha. We have to assume these dimensions. So we will assume NC is 9 and alpha 1. Now we have this equation for QU. So first of all we will find out the QU and then we will find the number of piles required, right? So for calculating this QU we have this equation QP into AP plus alpha into C into P into D. So here QP is 36. AP means area of a pile, that would be a 9 into pi by 4 into 0.4 square. Here alpha is 1, C is a 36. P into D, again P is a pi into D 0.4 and D is a 10. So after solving this whole, we will get QU 493.10 kilonewton for a one pile. Now we will find out the number of piles required. So for calculating this number of pile, what we will do? The load divided by this QU and we will get the number of piles. So सबसे पहले यहाँ पे हमें लोड कितना बताया है? ट्रांसफर्ड लोड 2800 किलोन्यूटन. सो यहाँ पे हम लोग 2800 डिवाइड बाय 493.10 करेंगे तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ पाइल्स 6 पाइल्स. सो हम लोग क्या करेंगे? 6 पाइल्स को कैसे अरेंज करेंगे? 2 रोज में, जिसमें 3-3 पाइल्स आएगी. For n is equal to 0, length of each file needs to be decreased in a ratio. So हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे. तो modified length कितनी आएगी? 10 into 5.67 डिवाइड बाई 6. सो लेंथ ऑफ द पाइल कितनी आ जाएगी? 945 मीटर. सो ऐसे हम लोगों ने पाइल अरेंज की है. तो ये फिगर में बताया है. आपको ऐसी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी जब आप एग्जाम्पल करोगे. तो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे चेक फॉर द ग्रुप एक्शन, राइट. तो अज्यूमिंग स्पेसिंग 1 मीटर, सबसे पहले हम लोग AG फाइंड आउट कर देंगे. तो AG ग्रॉस एरिया फाइंड आउट अगर करना है तो कैसे होगा? 2 into 1 प्लस 0.4, राइट, क्योंकि डायमीटर कितना है हमारा? 0.4. सेम 1 प्लस 0.4 तो हमारा ग्रॉस एरिया कितना आ जाएगा? 3.36 मीटर स्क्वायर. अब हमारा PG फाइंड आउट करना है हमें, तो वो कैसे होगा? तो वो 2 into 2.4, क्योंकि ये लेंथ हमारी है 2.4 प्लस 2 into 1.4, ये 1.4, मतलब कि ये टोटल ओवरऑल एरिया आ गया. अब हम लोग देखेंगे QU का इक्वेशन, उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे. तो यहाँ पे QP हमारा आएगा 36, AG आएगा 9 into 3.36 प्लस C है 36, PG है हमारा 7.6 जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, एंड डायामीटर जो हमने प्रोवाइड किया है, मतलब कि लेंथ, वो 945 आएगी. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें QU की वैल्यू मिल रही है
3674.16 जो है 2800 जो हमारी है उससे ज़्यादा है, मतलब कि हमने ये जो डिज़ाइन की है वो ओके है, डिज़ाइन हम लोगों ने जो की है वो परफेक्ट है. So provide a group of 6 piles in a 2x3 rectangular pattern with the length of each pile 9.45 मीटर. ये सेंटेंस आपको लास्ट में करके ख़त्म करना है. तो यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल ख़त्म होता है. सेम हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ा अलग है ये एग्जाम्पल. So in a 16 pile group, the pile diameter is a 0.4 meter and center to center spacing of a piles in a square group is a 1.5 meter. If Cu is a 50 kilonewton per meter square, determine whether a failure would occur as a block failure or when the pile act individually. Neglect the bearing at the tip of a piles are 12 meter long and take m is equal to 0.7 for a shear mobilization around each pile. Also determine the safe load on this group. So यहाँ पे हमें ये डिटेल सारी दे दी है और हमें लोड फाइंड आउट करना है, राइट. तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि हमें डेटा कौन सा दिया है. नंबर ऑफ पाइल्स है 16, स्मॉल डी दिया है 0.4, एस है हमारा 1.5, सी हमें दिया है 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैपिटल डी डायमीटर है 12 एंड अल्फा है 0.7 दैट इज एडहेजन फैक्टर. ये हमें इतने डायमेंशंस दिए हैं. तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक फेलियर देखेंगे. तो विड्थ ऑफ अ ग्रुप पाइल वो देख लेंगे. तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है ये 3 इंटू स्पेसिंग प्लस डी. स्पेसिंग कितना है 1.5. सो हमें बी कितना मिल गया 4.9 मीटर. नाउ निग्लेक्टिंग अ बेरिंग एट अ टिप ऑफ पाइल we will find this QG, राइट. तो उसके लिए इक्वेशन है C इंटू पी जी इंटू डी. ये सारे इक्वेशन सब लोगों ने आगे थ्योरी में पढ़ लिए हैं, राइट. तो इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे. C है 50, रो जी है 4B इंटू डी, डी है 12. सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमें QU की वैल्यू कितनी मिल रही है 11,760 किलो न्यूटन. अब हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल पाइल फेलियर. सो इंडिविजुअल पाइल फेलियर के लिए अगेन QU इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी इंटू पी इंटू डी करेंगे. अगेन अल्फा हमारा है 0.7, सी है 50, पी फाइंड आउट करने के लिए पाई इंटू 0.4, पाई इंटू डायमीटर ऑफ दिस पाइल इंटू 12 लेंथ. सो उसके लिए हमें QU मिल रहा है 527.78 किलो न्यूटन. ये एक इंडिविजुअल पाइल के लिए है. तो ग्रुप पाइल के लिए कितना आएगा तो 16 इंटू दिस लोड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8444.60 किलो न्यूटन. सो एज द अल्टीमेट लोड फॉर ए इंडिविजुअल पाइल इज लेस, फेलियर वुड बी बाय पाइल एक्टिंग इंडिविजुअली. सो अज्यूम अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5. सो यहाँ पे हम लोग सेफ लोड अगर फाइंड आउट करना है पाइल के ऊपर तो हमारा जो टोटल लोड है उसको 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3377.80 किलो न्यूटन. ये है सेफ लोड ऑन अ ग्रुप पाइल. वन मोर एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे. सो यहाँ पे हमें दिया है 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइल 15 meter long is driven in a deposit of a medium dense sand. Here phi is a 36, ny is a 40 and nq is 42. So unit weight of a sand is 15 kilonewton per meter cube. What is the allowable load with the factor of safety 3? यहाँ पे factor of safety हमें दिया है 3. Assume the internal pressure coefficient 0.6, right? तो यहाँ पे k हमें दिया है 0.6. So यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर अ पाइल ड्रिवन इन अ सैंड के लिए QU फाइंड आउट कर देंगे. तो उसके लिए ये इक्वेशन है QP प्लस QS वाला. तो QP का इक्वेशन आएगा QP इंटू AP प्लस FS इंटू AS. सो अगेन यहाँ पे हमें QP फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे Q इंटू NQ इंटू AP प्लस FS फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है K इंटू सिग्मा बार V इंटू 10 डेल्टा इंटू AS. तो ये इक्वेशन हम लोगों ने आगे जब ये थियोरी पढ़ी थी तब देख लिया था. अब यहाँ पे सबसे पहले DC मतलब क्रिटिकल डेप्थ अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए इक्वेशन है 15 इंटू बी, राइट.
तो इसको उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और 15 इंटू बी है हमारा पॉइंट 0.3 अगेन Q इज इक्वल टू गैमा इंटू डी सी। सो Q आपका है 15, गैमा इंटू डी सी की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो हमें डी सी कितना मिल जाएगा फाइनली 67.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये वैल्यू मिलने के बाद हम लोग ये QP वाला जो इक्वेशन था वो इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे। सो अगेन QP इज इक्वल टू Q इंटू NQ इंटू AP। AP कैसे फाइंड आउट करेंगे तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो AP की वैल्यू आएगी 0.0706 मीटर स्क्वायर। अब हमें QP की वैल्यू मिल रही है 200.150 किलो न्यूटन। नाउ इफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर विल इंक्रीज अप टू अ क्रिटिकल डेप्थ DC दैट इज 4.5 जो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया, एंड बिलो दैट इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो उसके लिए K आपको दिया है 0.6 एंड डेल्टा अगर फाइंड आउट करना है तो कोएफिशिएंट उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ सॉइल एंड पाइल, तो वो आएगा 0.755 फॉर अ कॉन्क्रीट पाइल। सो वो उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 0.75 इंटू 36 तो उसकी वैल्यू आएगी 27 डिग्री। अब 10 डेल्टा अगर फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.509। अब ये आगे इक्वेशन था हमारा, वो इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले QS का, तो QS का इक्वेशन इतना हो गया K इंटू 10 डेल्टा एरिया ऑफ सिग्मा बार V डाया इंटू पेरीमीटर ऑफ अ पाइल। सो K है 0.6, 10 डेल्टा है 0.509, एरिया ऑफ अ सिग्मा V फाइंड आउट करें अगर तो वो आएगा 1/2 इंटू 67.5 इंटू 4.5 प्लस 67.5 इंटू 10.5, पेरीमीटर ऑफ द पाइल आएगी पाई इंटू 0.3। सो हमारा QS की वैल्यू मिल जाएगी 247.72 किलो न्यूटन। सो ये था हमारा QS फाइंड आउट होने के बाद हमें ये फिगर भी ड्रॉ करनी है, शो करना है कि हमारा DC 4.5 है, यहाँ पे हमारा 67.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया। नाउ QU इज इक्वल टू QP प्लस QS। तो QP हमने फाइंड आउट किया था वो था 200.15 एंड QS था हमारा 247.72, तो हमारा टोटल Q आएगा 447.87 किलो न्यूटन। नाउ Q अलावेबल अगर फाइंड आउट करें तो वो आएगा 447.87 डिवाइड बाय F। तो F हमारा क्या था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। सो अगेन 447.57 डिवाइड बाय 3 करें तो हमें मिल जाएगा 149.29 किलो न्यूटन। सो गाइज यहाँ पे हमारा ये पाइल फाउंडेशन वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे गूगल मीटिंग में भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।